Good morning, students. So today we will solve some problems on distance and displacement. Okay. In the last period we have seen the distance is a scalar quantity, it has only magnitude, and displacement is a quantity which depends upon the direction. Displacement is the shortest path and distance is the longest path. Whatever the total he has traveled, that we have to. Now see the problem. A body travels in a semicircular path of radius 10 meters starting its motion from point A to point B. Calculate the distance and displacement. Okay. Now see, semicircular path. So semicircle means half circle that you have to consider, and it is moving from A to B, point A to point B, and you have to calculate both. Both means what? Distance and displacement. So first of all we will write down what is given. Radius is given, it is 10 meter. So what you have to calculate? Distance, it is equals to question mark, displacement is equal to question mark. Distance and displacement both are having the same symbol, so we haven't written here symbol. And it's semicircular path, so we have to consider the circumference, and therefore we have written the value of pi, that is equals to 3.14, or you can take 22/7. आप लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं मैथ्स में, तो आपको पता होगा कि ये पाई क्या होता है. ओके. Now see, the semicircular path means it's a half circle. So the object has started its journey from point A and it reaches to a point B. We are not considering this direct distance because already it is mentioned in problem that it has traveled this on a semicircular path. वो semicircular path travel करके ही गया है, इसका मतलब वो A से ऐसे travel करके B पे आया है. तो जब कोई सर्कुलर पाथ होता है तो हम उस पर्टिकुलर सर्कल की में जो रहता है लेंथ, वो कैसे मेजर करते हैं? द लेंथ ऑफ दिस सर्कल इट इज़ इक्वल्स टू 2πr. जो उसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है वो उस सर्कल की क्या होती है? लेंथ होती है. मतलब जैसे आपकी कोई चूड़ी, अगर आप उसको निकाल कर बिल्कुल एकदम सीधा करते हो, स्केल से मेजर करते हो, तो वो लेंथ और इस फॉर्मूले से आने वाली लेंथ, वो दोनों लेंथ कैसे होती है? सेम. अभी यहाँ पे अपने को लेंथ निकालनी है, ये सर्कल की हाफ सर्कल की लेंथ निकालनी है, तो हम सेम वही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल्स टू 2πr. सर्कुलर बोला है मैंने, इसलिए मैंने 2πr लिया. लेकिन अभी हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? सेमी सर्कुलर, हाफ ही सर्कल चाहिए. तो हम इस 2πr को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से. सो 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला पाई इंटू आर. सो आई हैव पुटेड हियर द वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय आर. डेसिमल मल्टीप्लिकेशन शायद आपको आता होगा. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10. सो डायरेक्टली इट इज इक्वल टू 3140. एंड आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 1 2. So 1 2 we will put here point. So it is equals to 31.4. So distance. Now the displacement is the shortest path. तो शॉर्ट, ये इतना लंबा ऐसे घूम के नहीं जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, बिल्कुल सीधा छोटा सा पाथ लेगा वो. सो दैट डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल्स टू AB. एंड सी व्हाट इज AB? AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके. तो डायमीटर हमेशा रेडियस का कैसा होता है? डबल. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो डायमीटर शॉर्टेज डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर. So 2 into 10 is equal to 20 meter. So in this way we have calculated the distance and displacement along this semicircular path. Now see the next problem. Here the movement is considered as a linear path. Now see here, a body travels 4 kilometers towards north, then he turns to his right and travels another 4 kilometers before coming to rest. Calculate again the same distance and displacement. Now here the body has traveled, suppose this is your body, it is traveling 4 kilometers north. आपको पता है मैप में नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. सो इट इज़ गोइंग 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. वो ऐसे ऊपर गया है 4 किलोमीटर का, और फिर ये इस पॉइंट पे आके, उन्होंने अभी बोला नहीं है आपको कि ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है, तो हम दोनों डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं. कैलकुलेशन वही आएगा, या तो वो राइट एंगल बना के इधर गया है या फिर वो राइट एंगल बना के इधर गया. पर्टिकुलरली अगर ईस्ट और वेस्ट उसने डायरेक्शन दिया होगा था तो ये दोनों डायग्राम में से हम एक ही डायग्राम बनाते, बट दैट डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन. सिर्फ इतना मेंशन किया है कि वो राइट एंगल में टर्न हुआ है. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का राइट एंगल बना. तो आपको इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. दोनों सेम ही है डायग्राम, डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम बना लिए. नाउ सी व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज A एंड दिस इज B. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस हियर?
OA. So total distance is OA plus AB. So it's 4 kilometer plus 4 kilometer. So it is equals to 8 kilometer. Now what will be the displacement? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ऐसे क्या करना पड़ेगा, जॉइन. सो वी विल गेट अ ट्रायंगल हियर. सो दिस इज OAAB एंड दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया. नाउ सी दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल OAB. सो दिस OB you have to calculate and this OB is a hypotenuse of right angle triangle. So we will use that formula. Square of hypotenuse, it is equals to the square of base plus square of height. So your base is 4 kilometer and your height is also same. आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो इसमें. So it is 4 square plus 4 square. So OB अंडर रूट लेंगे हम इसका, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में आ जाएगा. So 4 square is equals to 16. Again 4 square it is equals to 16. So 16 plus 16 हो गया आपका 32. 32 को हम लिखेंगे 16 इंटू 2. अभी 16 किसका स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है. 16 स्क्वायर है 4 का, तो वो 4 बाहर आ गया, लेकिन 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमको वो वैल्यू लर्न करनी पड़ेंगी. √2 √3 ये मोस्ट प्रोबेबली जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी वैल्यू हमको लर्न करनी पड़ती है. और √2 की वैल्यू आती है 1.41. हम यहाँ पुट डाउन करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1.41. So it is equals to 5.64. So your displacement is 5.64. तो ये सिंपल प्रॉब्लम हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है. The next topic that we are going to study is the uniform motion and non-uniform motion. So what is uniform motion? If the object cover equal distance in equal interval of time, इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है इक्वल टाइम के ड्यूरेशन में, तब हम बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो टाइम सेम है, इंटरवल टाइम का इंटरवल इक्वल ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कैसा कवर अप किया है उसने, अनइक्वल, तो हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सी दिस इज द ग्राफ ऑफ योर यूनिफॉर्म मोशन. टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस. दिस इज योर ओरिजिन and this is your point A. So if in uniform motion you are always getting a graph and that particular graph is a straight line, but in non-uniform motion you always get a curved line. ये ऐसी curved line दिखेगी. Accelerated, this is an example of accelerated motion, क्योंकि motion increase हो रहा है step by step, and this is an example of decelerated motion. तो यहाँ पे motion जो है वो आपका धीरे धीरे decrease हो रहा है. ये दोनों types है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, जब आप कार एकदम स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. और जब आप ड्राइविंग स्टॉप करने जाते हो तो एक मैक्सिमम स्पीड रहती है, फिर आपकी कार की स्पीड कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी एक्सेलरेटेड मोशन. हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन के बहुत कम एग्जाम्पल होते हैं. ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, सपोज वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन अ कार ऑन अ क्राउडेड स्पीड, सामने बहुत सारे लोग रहते हैं तो हमारी स्पीड कम ज़्यादा कंटिन्यू चलती रहती है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सी with the help of this table you will get clear. See, this is car A, distance traveled by car A, and this is distance traveled by car B, both in kilometer. 9:30 a.m., then 9:45, then 10, then 10:15, then 10:30, then 10:45, and then 11. See the duration of this time interval, it is exactly equals to 15 minutes. 15 मिनट का ड्यूरेशन है. So this type of duration it is known as equal time interval. Now see the distance traveled by the car A in first hour, 10 kilometer, then next 15 minutes 20 kilometer, then next 15 minutes 30, then next 15 minute. हर 15 मिनट के इंटरवल में उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 9:30 12 किलोमीटर, 9:30 के बाद 9:45 15 मिनट्स में उसने 19 किया. इसका मतलब 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया. 12 के बाद डायरेक्ट 19 आया, मतलब 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया. फिर नेक्स्ट 15 मिनट में कितना ट्रैवल किया उसने, 4 किलोमीटर. 19 के बाद 23 आ गया, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 4 किलोमीटर हो गया.
अभी 23 के बाद डायरेक्ट 35 आया है, यहाँ फिर से उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, 2 किलोमीटर किया 15 मिनट्स में, मतलब हर 15 मिनट्स में इसका जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो कम होते जा रहा है, कम ज़्यादा होते जा रहा है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन.